Good morning, student. Welcome to chemistry class of 12th chemistry. As you know that we are revising chapter and our chapter is chemical kinetics. In yesterday class we discussed all about the theories from this chapter. Today I will repeat that in brief as you see in the serials. Whenever serial start they show the back portion. So once again I will tell you in hurry that in this chapter in electrochemistry most of the heavy portions are deleted due to corona. That is Arrhenius equation based on Arrhenius equation and collision theory. Okay, what we have to study in this chapter I have told you in yesterday class. Today I will also tell you that is first is the rate of reaction, and before that I told you that there are different type of reaction based on the rate. For example, that is the very fast reaction and very slow reaction and moderate rate reaction. Okay, in very fast reaction we can't determine the rate of reaction. In very slow reaction we can also not determine the rate of reaction, because in one reaction there is very less time to see the reaction, and in one reaction there is a lot of time, very much time. Okay, so only moderate rate of reaction can be determined, or moderate reactions which are occurring in the medium speed, which we can see. Okay, such as the burning of magnesium ribbon. Okay, and in very fast reaction I told you that neutralization reaction, precipitation reaction, all these are the very fast reaction. And in very slow reaction I told you about the such as the corrosion, such as the photosynthesis, etc, etc. In moderate reaction I told you burning of the ribbon, magnesium ribbon. In the lab you can see that how much time it take to burn, and it completely convert into the magnesium oxide. Okay, then I told you about the rate of reaction. It informed that in a given time how much reactants are converting into product, or how much products is formed in given time. Okay, then we saw the average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. In average reaction we saw that final minus initial upon time, and then we saw the instantaneous reaction, in which we saw the rate of reaction can be determined at a particular time, at a particular extent of the reaction. Okay, and then we saw the what is molecularity, what is difference in molecularity and order of reaction, what are order of reaction. Okay, today we will see the integrated rate equations of the orders of reaction. As you know that student, we have to study only the zero order and first order and their half-life reactions, and the numerical based on these two equations only. Okay, Arrhenius equation I told you that in earlier of this video that Arrhenius equation numerical based upon the temperature and collision theory are these are the deleted due to the COVID pandemic. Okay, so then we will start what is the order of reaction. Then we see the different type order of reactions and their equation only.
Okay, and once again I will repeat that we have to study only the zero order and first order and their half life and numerical based on that. Okay, let's start first from the zero order reaction. Okay, then we will see our motto is for revision is that before starting the board question we should know the what are the formula will be used in the numerical, how they come, how they are created. First of all we should know that in brief. Okay, now zero order reaction. order reaction एकदम शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, वेरी शॉर्ट में देखेंगे. इट इज ऑर्डर ऑफ it is order of those reactions whose rate do not depends upon concentration of reactant. concentration of reactant. ओके, इसको अगर हमें दिखाना है एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे हमने एच न्यू मीन्स सनलाइट ले लिया और द हीटिंग ले लिया विथ कैटलिस्ट. ओके, तो यहाँ पे जो रेट हो जाएगा, रेट प्रोपोर्शन इक्वल टू की e की पावर 0. Okay, and you can say all those reactions which takes place in sunlight in very short and in dark in presence of heat and catalyst. ओके, हीट एंड कैटलिस्ट. तो यहाँ पे हम लोग जो है कि वो सारे रिएक्शंस जो कि होते हैं कि इसमें सनलाइट में होते हैं, डार्क में इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट. हीट और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर होते हैं तो जितने भी ऐसे रिएक्शन होंगे वो सब के सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे. वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं. जीरो ऑर्डर इक्वेशन हमने देख लिया, अब इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी देख लेंगे. डेरिवेशन नहीं करेंगे, केवल हम लोग जो है कि उसका इक्वेशन लिखेंगे. सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, सारे का नोट्स मिल चुका है और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी हमने भेज दिया है स्नैप होमवर्क पे, आपको उसे सॉल्व करना है. ठीक है, आज हम जो है कि सारे बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं 10 सालों में उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो हमारा रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जीरो ऑर्डर के लिए. तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन यहाँ पे हम देखेंगे.
integrated equation for first order zero order ठीक है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में हमने पहले ही बता दिया कि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, यहाँ पे टी लिख सकते हैं अपॉन टी, where R naught is equal to initial concentration and RT is equal to फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम F लिख दे तो अच्छा होगा, फाइनल कंसंट्रेशन ओके। K is velocity constant and T is the टाइम ओके। तो ये हमने इसके बारे में जान लिया। अब यहाँ पे हम इसका जो है कि हाफ लाइफ निकालनी है। हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इफ टी इक्वल टू, यहाँ पे हमने ले लिया टी हाफ एंड आर टी या आर एफ इक्वल टू जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है इक्वल टू हम ले लेते हैं आर नॉट अपॉन 2, ठीक है। तो देन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 अपॉन टी हाफ ओके। तो यहाँ से हमारा टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k ओके। तो ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर के लिए ओके। अब इसके बाद इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम देखेंगे और फिर उसके लिए हाफ लाइफ देखेंगे, फिर हम फटाफट न्यूमेरिकल देख लेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फट से नोट कर लिया ओके। तो इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकले, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ए से बी बन रहा है, पी बन रहा है, तो जो हमारा रेट होगा वो रेट इक्वल टू जाएगा के ए ओके। इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the
proportional to the rate of reaction. Concentration of a reactant in consumed or converted into product is known as first order reaction. ठीक है, इसमें वही रिएक्शन आएंगे जो कि कैटलिस्ट और सनलाइट से बचे हुए हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स हम बहुत सा देख सकते हैं, जैसे कि हम 2H2O2 लेते हैं, यहाँ पे 2H2O प्लस O2. तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वल टू K/2O2. ठीक है, हम इस स्टिचियोमेट्री पे नहीं जाएंगे. आई बात सुनिए, यहाँ पे C2H5Cl डिकम्पोज किया तो C2H4 प्लस HCl बन गया. तो जो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K, यहाँ पे C2H5Cl. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया. नोट कर लीजिए फटाफट. ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. तुरंत स्क्रीनशॉट लिया करिए, खटाखट एकदम हो जाएगा, स्मार्ट बनिए. ठीक है, okay. Here we will see the integrated rate equation for first order. ओके, तो ये होता है K इक्वल टू 2.303 T log R0 अपन RT मीन्स गिवन टाइम. ओके, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है. इसके लिए हम लोग जो है कि हाफ लाइफ लिखेंगे. ठीक है, एंड हाफ लाइफ इक्वेशन फर्स्ट half life equation for first order reaction. तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, तो इफ ऐसा करने की T इक्वल टू T हाफ and R0 इक्वल टू RT इक्वल टू
आर नॉट अपॉन 2। तो यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग आर नॉट अपॉन 2। यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2.303 टी हाफ इंटू लॉग, यहाँ से ये कट जाएगा 2, और लॉग 2 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। लॉग 2 इक्वल टू 0.3010। तो here will be 2.303 into 0.3010 upon t half। ओके, नोट कर लिया इसको? हैव यू नोटेड दिस? ओके, थैंक यू। नाउ वी विल सी द फॉरवर्ड। k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन टी हाफ, ये हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब इसके बाद टाइमिंग क्या होती है वो हम देख लेते हैं कि अगर हम 3% लेते हैं तो क्या होगा, 3/4 लेते हैं तो क्या होगा, 60% लेंगे तो क्या होगा, 90% लेंगे तो क्या होगा, ये सारे इक्वेशंस हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे बच्चों हमने कुछ इक्वेशंस लिख दिए हैं, जैसे कि अगर रिएक्शन का टाइम टी हाफ की जगह पे 3/4 है तो उस कंडीशन में इक्वेशन हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए 3/4 का होगा 1.386 अपॉन के, जो कि जस्ट डबल ऑफ हाफ लाइफ होगा। फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ का दोगुना होगा, जो टाइमिंग है 3/4 का। 60% डिकम्पोज होने की टाइमिंग अगर हम निकालेंगे तो 0.9165 के कर देंगे। 90% का अगर निकालेंगे तो 2.303 अपॉन के हो जाएगा, जो कि लगभग 3.33 टाइम ज़्यादा होता है टी हाफ के। ठीक है, 99% के लिए यहाँ पे आएगा 4.603 अपॉन के, और ये जो होता है जस्ट डबल होता है T90 का। ठीक है, ये हमने डिफरेंट टाइम्स लिख लिए कंसंट्रेशन में, कुछ और भी अभी हम लोग लिखेंगे, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बहुत जल्दी। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है और समय जा रहा है और हमें क्वेश्चन अभी और भी करने हैं, तो अगर जिसके फार्मूले हमें शॉर्टकट में पते हैं उसको हम लिख लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास टाइम है तो उसको कायदे से लिखेंगे, केवल शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जैसे 3/4 का निकालना है। अब सॉल्व करते करते यहाँ पहुँचेंगे, अब टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम ये जानते हैं इतना होता है, और अगर हमें कहीं टी हाफ की वैल्यू निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से 60% में, वैसे 90% में, वैसे 99% में हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है। इसके अलावा और भी क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बाकी जो इक्वेशन लिख लिए, अगर कोई भी रिएक्शन का टाइमिंग है 99.9% हो रहा है कोई रिएक्शन, उसके लिए हमें टाइम निकालना है तो 6.909 के हो जाएगा। ये जो होता है वो 10 गुना ज़्यादा होता है किसका, टी हाफ का। अगर कोई रिएक्शन किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने 99.9% कंप्लीट होने की टाइमिंग को पूछ रहा है, तो उसके लिए इक्वेशन हमारे ये है, और ये जो टाइमिंग होता है वो कितने गुना ज़्यादा होता है, 10 टाइम जो है कि हाफ लाइफ का होता है, 10 टाइम हाफ लाइफ का होता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर कोई टाइमिंग पूछ रहा है 87.5% कंप्लीट होने का, तो ये 3 टाइम ज़्यादा होता है किसका,
हाफ लाइफ का, और 1.5 टाइम ज़्यादा होता है 75% कंप्लीट होने का। एक बार फिर से कि अगर कोई रिएक्शन के कंप्लीट होने, कोई ऐसा रिएक्शन है जो कि 87.5% कंप्लीट होने का टाइम पूछ रहा है, तो ये हाफ लाइफ का 3 गुना होता है, और 75% की का जो है 1.5 गुना होता है, 1.5 टाइम होता है। और अगर 93.87% अगर किसी का किसी रिएक्शन का टाइमिंग पूछा है कि जो कि 93.87% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो 4 टाइम होता है हाफ लाइफ का, और 2 टाइम होता है वो 75% का। इसी तरह से 96.87 अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो 5 टाइम हाफ लाइफ का जो है कि 5 टाइम्स होगा हाफ लाइफ का। तो ठीक है, अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है इन केस, चाहे कंपटीशन में चाहे कहीं पे भी, तो हमारे पास ये शॉर्टकट्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग जो है कि जनरल फार्मूला देख लेते हैं हाफ लाइफ का। चलिए ठीक है, आइए हम लोग अब जो है कि हाफ लाइफ का जनरल फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला फॉर हाफ लाइफ। फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू टी इक्वल टू 2.303, यहाँ पे एन कर देते हैं कि log n/n-1। ठीक है, एक ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, हमें अगर किसी का टी हाफ पता करना है 1/2, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला, जनरल फार्मूला फॉर, नोट कर लीजिए फटाफट, जनरल फार्मूला फॉर द टाइम टेकन फॉर nth फ्रैक्शन ऑफ द, ये एक्चुअल में हम कह सकते हैं जनरल फार्मूला फॉर द टाइम टेकन। अगर हम एक जनरल फार्मूला लिख रहे हैं तो होना चाहिए टाइम टेकन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन n टाइम। अब अगर जैसे कि अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेना है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो हो जाएगी। सेकेंड ऑर्डर लेना है, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 - 1 कर देंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, log 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा। इस तरह से हम जो है कि nth ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस का अमाउंट पूछ देता है, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर सम टाइम अगर पूछ देता है, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर कोई भी ऑर्डर में nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हो रहा है तो n हाफ लाइफ्स में कितना अमाउंट बचेगा, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स तो ये हमारा होता है A0/2 के पावर n। अब जो भी होगा हमको उसको पावर में कर देंगे तो हमारा वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट आफ्टर लेफ्ट आफ्टर कितना बचता है, अगर n हाफ लाइफ चली जाती है, 2 हाफ लाइफ, 10 हाफ लाइफ, 20 हाफ लाइफ, तो कितना बचेगा वो हम इस तरह से हम जनरल फार्मूले का यूज़ करके जो है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अब हमारा जो है कि न्यूमेरिकल पे ध्यान होगा। चलते हैं बोर्ड के न्यूमेरिकल को भी हम लोग देखेंगे। तो आज हमने क्या किया कि पूरे सारे फार्मूले को एक बार रिवाइज कर लिया। अब हमें केवल क्या करना है, बोर्ड के जो इक्वेशंस होते हैं, हमारी एनसीईआरटी में जो
इंटेक्स में क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जो है कि हमारी जो एक्सरसाइज होती है तो सफिशिएंट है। अगर बोर्ड के क्वेश्चन देखना है तो हम अपने एनसीईआरटी सॉल्व कर लें तो भी काम हो जाएगा। हमारा जो है कि पहले एक आज इक्वेशन हम देते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए रेट कांस्टेंट के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। बहुत फटाफट एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग बहुत जल्दी से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 1.15 इंटू 10 टू पावर, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 10 टू पावर -5 पर सेकेंड, ओके। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टी पूछ रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक 5 ग्राम ऑफ दिस, ठीक है। इनिशियल अमाउंट जो है कि ये 5 ग्राम है और रिड्यूस होकर के फाइनल अमाउंट आर इक्वल टू 3 ग्राम। तो 5 से 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू 2.303 के लॉग 5/3, क्या करेंगे 5/3। अगर ये बस पूछा होता है बचने के लिए तब जाकर के ये बोल देता है कि अगर 2 ग्राम खत्म हो जाते हैं तो हम इसमें से घटाते तो 3 आता। अभी तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1.303 टी इक्वल टू 1.15 इंटू 10 टू पावर -5 लॉग 5/3। और हमें log 5 और log 3 की वैल्यू हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो log 5 इक्वल टू 0.6990, log 5 इक्वल टू एंड log 3 इक्वल टू 0.4771, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू ध्यान में रखना है। हमें 5 तक के लॉग की वैल्यू याद रखेंगे तो इसके बाद के जितने भी होंगे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू पावर -5 log 5 माइनस log 3, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2.303 अपॉन 1.15 10 टू पावर -5 और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 0.6990 माइनस 0.4771, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू पावर -5। अब यहाँ से इसको हम क्या आएगा हमारा 1 एंड 1, ओके, 2 2, ये हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब हमारे ये एक न्यूमेरिकल हमने बोर्ड का देख लिया। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। ये आएगा 4.443 इंटू 10 टू पावर 3 10 टू पावर 2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 4.3 सेकेंड। यहाँ से हमारा टाइम पता लगता है, ठीक है। तो अभी हम इसमें और भी न्यूमेरिकल लगाएंगे। कल फिर मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। हैव अ नाइस डे, ओके।